Jai Bhim, everyone. Uh, Let me congratulate the organizers for organizing this beautiful discussion on such an important issue, which is bringing impact on larger society of India. And Abhishek Chauhan ji, he has already placed before you the constitutional provisions, consequences, and the outcome are the judgment given by respective judges. My colleague, Professor Ganga Sahai Meena ji, he has also discussed broadly about this decision taken by Supreme Court on 1st August 2024, and Dr. Umakant, who has given a broader picture of this entire happening, how this larger society is discriminated. And let me just go back when I am discussing on this issue. Reservation, non-reservation is not a question of giving certain representation to certain communities. And I endorse what my colleague Professor Ganga Sahai has said. We have to come out with some alternative document. That is the most important. And this is a challenging work for all of us to give a document, alternative document. This is the model we are interested to include all those societies excluded from the benefit of the reservation. We have to be, because we have to work seriously. We have to be honest. There is a discrimination among the scheduled caste, scheduled tribe, and OBC also. We have to accept the reality. And other side of the society, they are taking benefit of our weakness, what we are supposed to discuss, and they are discussing. जज भी वही होंगे, मुकदमा भी वही करेंगे, न्याय भी वही करेंगे, और पक्ष विपक्ष में वही बोलने भी बैठ जाएंगे. What is your contribution in this society? And my dear student, let me give you the history of reservation. Who availed the facilities of reservation for the first time during the colonial period? It was the Brahmin availed the reservation facility during the colonial period. And initially, civil services, we all are aware this, that I'm not saying something superficial, it's all documented record. Initially, this civil services examination was conducted in London. Am I right? And what happened? Those days, who are the society, who are the community appearing in civil services society? Only Brahmin. Scheduled caste, scheduled tribe, backward के लिए तो सोचना ही बेकार था. And every time, all those Brahmins, they could not clear a single written examination because there was a 50% ceiling. If you are securing 50% in a written examination, then you will be selected for interview or viva, etc. Every time they failed. They failed to clear examination, civil services examination, and there was a petition by the Brahmin community. Sir, our level of education is a very poor, very low. Therefore, we should be given relaxation. How much? 10%. Meaning by they should be allowed to write in civil service examination on 40% marks. अंग्रेजों ने भी मान लिया, कहा कौन से हम गवर्नर जनरल बनाने जा रहे हैं, बाबू तो चाहिए हमको. Let us accept 40%. That was the first, beginning. That was the beginning of reservation. अब दूसरा,
Second step, what they did, and they submitted other petition before the British. Since our economic condition is very poor, we are unable to come to London to appear in the civil services examination. Therefore, civil services examiner should be conducted in India. तो वो भी मान ली गई कि चलो इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज शुरू हो रहा. 26, 27, we study the history of reservation, and for the first time when civil services examination was conducted in India, none of this Brahmins clear the civil services exam. The second time, 3 Brahmins clear the civil services exam, 40%. And they are the people discussing about merit and creamy layer. वाह, कितना क्रीम हो गया शेड्यूल ट्राइब में, जरा ढूंढा जाना चाहिए. हम भी ढूंढने में निकले हैं. और शेड्यूल कास्ट में कितना, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट आजकल आ गए हैं. सो मेनी साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट. मैं ये साइंटिफिक रीजन ला रहा हूं कि 1000 में 37 जो धोबी समाज से बिहार में हो गए, 1000 इसमें जो है ये रविदसिया समाज जो हो इसमें हो गए हैं, 37 नहीं 26 हो गए, 1000 में ये. और उसके बाद कौन सोसाइटी है, ये क्या नाम है, जो माझी जी, उनके 6 ही हैं, वो पिछड़ गए. So how Dhobi society, so Dhobi caste is responsible for their backwardness? ये तो कोई बता दीजिए. And in other term, and its larger extent, Meena sir, they have succeeded in their mission, where government failed to divide the Dalit, Adivasis and scheduled tribe and this backward class, and this is the outcome of Supreme Court. मैं वेलकम, जैसे जैसे याद आता रहेगा वैसे वैसे बोलता रहूंगा. मैं कोई अभी क्लास में पढ़ा के आ रहा हूं, इसलिए मुझे. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, जो अभिषेक जी ने भी कहा अभी, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इंदिरा साहनी एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया. फिर मैं वहीं जा रहा हूं कि 9 जजेस बेंच जो कहती है, व्हाट इज I mean, is there any constitutional provision to give reservation to backward class to the tune of 27% instead of 52%? थोड़ा इस पे सोचा जाना चाहिए कि बड़े लर्नेड विद्वान. और जो उमाकांत कहते, इससे मैं तो एग्री नहीं करता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो. अगला संघर्ष न्यायपालिका के खिलाफ होगा, ये दावा. और ये लोग ग्राउंड दे रहे हैं हम लोगों को, खुल के दावा कर रहा हूं. जेएनयू के टीचर होने के नाम पर यहीं का स्टूडेंट भी रहा हूं. अगला संघर्ष, अगली बगावत न्यायपालिका के खिलाफ होगी, तब जाकर के बात बनेगी देश में करना क्या है आपको. बाकी जगह उमा जी के साथ हूं, मेरे छोटे भाई. अरे आप भी जाइएगा, गीता उता पुराण उराण महाभारत तो वहीं पढ़िएगा, कुछ वहां बहुत कुछ मिलता है. जितने लोग छूट के आ रहे हैं वो सब गीता पुराण पढ़ रहे हैं वहीं पर. संविधान कोई नहीं पढ़ रहा. अरे मिलता ही नहीं है. संविधान कोई नहीं पढ़ा, सब लोग गीता पुराण वहां पढ़ करके सीख रहे हैं. जैसे अभी कुछ लोग छूटे हैं, 3 राज्यों में चुनाव आ रहा है ना, तो सब धीरे धीरे छोड़े जाएंगे कि चलो यहां से छोड़ दो, यहां से छोड़ दो. और जब उसमें 27% का जो आया है, लेट मी गिव अनदर एग्जांपल. माय स्टूडेंट, कास्ट जो हम लोग कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस की, मीना सर, फॉर द नॉलेज ऑफ एवरीवन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन अ बॉडी टू डिक्लेयर द कास्ट सेंसस as caste enumeration. इट इज सेंसस डिपार्टमेंट. और सेंसस डिपार्टमेंट जो नहीं कर रहा था, नेशनल सैंपल सर्वे 1990 and 2000, they are coming with some statistics. OBC population is 31%. अरे ये कैसे हो रहा? And let me give you some example. In 1931 census, total population of the country was 25 crore something. 25 crore something. And at the time of independence, it reached to 39 crore. Out of 39 crore, 6 crore prefer to
go to Pakistan and 33 crore they remain in India. थोड़ा सा आप लोग रिसर्चर हम, रिसर्च मेथोडोलॉजी यहां पर भी लगनी चाहिए कि हो क्या रहा। एंड हियर अभी आज की जनसंख्या बता दे रहा हूं, आज भारत की जनसंख्या क्या है, 145 करोड़ से ज्यादा नंबर भी है, वो नंबर अभी बता दूंगा, 145 करोड़ से ज्यादा सर। एंड वहां पर भी झूठ बोलेंगे, सब डिबेट करेंगे जो टीवी पर, हमारी जनसंख्या 140 130, मतलब जो ही समझ में आए, एक एक वक्तव्य में ये सब 10-10 करोड़ खा जाते हैं। गजब के झूठ बोलने वाली, मतलब इन सबों ने ऊपर रखा है भाई। जेएनयू को बोल रहा हूं, जेएनयू का टीचर हूं, उमा जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूं जेएनयू से बढ़िया अगर आपको कहना चाहिए अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो मेंटल होता है, वहां दिखता नहीं है जेएनयू। जेएनयू में हिस्ट्री बनी है, जो मैं रहा हूं अपने सेंटर का 25 साल के जेएनयू के इतिहास में 9वां स्टूडेंट था जो पीएचडी कर पाया था, वो भी 3 सुपरवाइजर बदल गए थे, इतना वो लोग काबिल थे, या मैं इतना कमजोर था। मेरिट की जो लोग बात करें, क्रीमी लेयर की। अब मैं इसको दूसरे ढंग से रखता हूं, 2-3 चीजें आप लोगों के सामने, पता नहीं कहां कहां खो जाता है सब। ओके, 2005 to 2006 NSSO data, what it says, OBC population 6% बढ़ रही है। 2005-2010 अगेन 6% बढ़ रही है। 2010-2015 यानी एवरी 5 ईयर 6%। अब मैंने इनका टोटल किया तो यही पॉपुलेशन जो हो रही है वो 30% हो जा रही है। आई एम गोइंग बाय देयर डॉक्यूमेंट, नॉट दिस नॉट माय डॉक्यूमेंट। 30% तो इनकी बढ़ गई, अब प्लस 31 जो वो कर रहा है 61% ओबीसी की पॉपुलेशन हो गई भाई। जो मंडल कमीशन रिकमेंडेशन की आप लोग बात कर रहे हैं, 31 सेंसस ओबीसी पॉपुलेशन वाज 58%। वो कहीं दबाव में आकर के मंडल साहब वो 52 ही कहेगा, 58% थी, 58 भी मैं कह रहा हूं। एंड आई सी अपॉर्चुनिटी इन दिस जजमेंट। Challenge are before us, what to do next, how to prevent the division among the scheduled caste, scheduled tribe and backward class. This is the challenge. And opportunity, we are going to emerge as a larger section of the society and we will win this struggle also. This is my apprehension. We are not going to accept this defeat. बहुत बड़े बड़े CSRD के लोग, सोशल रिफॉर्मर लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं इस ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहा हूं, उस ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहा हूं। सारे ग्राउंड आप ही जानते हैं, बाकी जेएनयू पे बैठे टीचर नहीं जानते और प्रोफेसर लोग नहीं जानते। और दूसरी चीज, नए डॉक्यूमेंट, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट, there will be a new demand that OBC should be given 25% this reservation. And now, what is the percentage of scheduled caste? What is the percentage of scheduled tribe? उनकी तो जनगणना होती है भाई, scheduled caste, scheduled tribe की। पता कब से जो गिने जा रहा है, 15%, 7.5%, 15%, अरे कब से 15-7% हो रही है भाई। उनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, और आज देश की पॉपुलेशन 145 करोड़, कैसे मोर देन 145 करोड़। दीज आर बेसिक इश्यूज वन हैज टू एड्रेस। स्टेट में आप कहते हैं कि यूपी जैसे स्टेट को, लेट मी साइट एग्जांपल, ये कहते हैं 22%, लेकिन एक डिकेड, 1 डिकेड बिफोर आई एम गिविंग दैट डेटा, 1 decade before scheduled caste population in Uttar Pradesh was 24.56%, यानी roughly around 25%। ये कहते हैं, मैं कहता हूं 30% से ऊपर हो गई। और ये तमाम चीजें जो हम लोग करते जा रहे हैं कि जो ये क्या बोलते हैं लोग, मिलाड़ लोग, तमाम मिलाड़ लोग हैं यहां पर बैठे हुए। मिलाड़ों से बड़ा मैं, कम से कम मैं दुखी हूं। और मिलाड़ों की संख्या जो है पूरे देश में 1098 स्पेस है 25 हाई कोर्ट में मीना सर, और लगभग 1000
978 77 कुछ मिलाड़ लोग अभी प्रेजेंट बैठे, उसी में मिलाड़ चंद्रचूड़ भी है। और जितने ये मिलाड़ लोग हैं उसमें निकाल डालिए कि जो 878 जो है मतलब रफली 900 मैं कह रहा हूं, उसमें 900 ब्राह्मण मिलाड़ हैं। इंटरेस्टिंग स्टडी है। इसमें मैं कहता हूं जो काफी आजकल चर्चित है, सीरियस, अभी सीपीएस में लोग आए थे बोलने के लिए, तो उनका कुछ आया है मेरे पास, मैंने देखा नहीं आया। उन मिलाड़ों के खिलाफ करो ना, जरा तुलना तो करो, मिलाड़ लोग कितने आगे गए। कंपैरिजन किसमें होगा भाई? चमार जाटव पिछड़ गए, धोबी उनसे पिछड़ गए, खटिक से पिछड़ गए और जातियां। अरे तो कंपेयर करना तो करो ना, ब्राह्मणों से कितना पिछड़े हैं वो लोग। ये क्या मतलब तुम उसी में बैठ करके डिबेट करते जा रहे हो? ये कोई कंपैरिजन होता है क्या? अब दूसरी रिपोर्ट जैसे आई थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो क्या ना बोलते हैं 14.2%, उसमें तो कोई बात ही नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी उसमें भी यही कंपैरिजन है कि देयर आर मेनी एरियाज वेयर मुस्लिम्स आर मोर बैकवर्ड देन द दलित्स। अरे ब्राह्मण से कर लो, समझ में आ जाएगा वो कहां। और ये पूरे के पूरे ये 950 से ज्यादा के डॉक्यूमेंट है आरटीआई से, सभी इन्हीं के दिए हुए, मेरे नहीं। और चूंकि अभिषेक जी एडवोकेट हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि वो लोग थोड़ा सा देखें इस पे कि एक मणिपुर हाई कोर्ट कहता है कि वो इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ मेनी जजेस आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और मध्य प्रदेश उसी जजमेंट को मीना सर क्या बोलता है कि नो वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई सेक्शन 6 ऑफ द आरटीआई एक्ट। वाह, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सेम एक्ट में वो मणिपुर दे रहा, वही हाई कोर्ट वही पर डेटा, और मध्य प्रदेश कहता नहीं गड़बड़ है मामला, देना मत। और तीसरी चीज, मैं जब बार बार इस बात को कहता हूं, अभी अभिषेक जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कहा, उमा भाई ने भी बहुत अच्छे ढंग से कहा कि ईवी चिनैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया and Supreme Court judgment is a, you can say, direct intervention in president's right, presidential power. Supreme Court has made an attempt to intervene what is right given in Indian Constitution under Article 341-42, और वो क्या कहते हैं, राज्य भी बना लेंगे। अब राज्य बना लेंगे तो लेट मी साइट अनदर एग्जांपल डियर। 2003 who was the prime minister? Atal Bihari Vajpayee ji. 417 general caste were made backward classes put in the backward classes list without any studies, no documentary study, no evidence, no document, ऐसे ही डाल दिया। उसी में मोदी गाछी जी हो गए बैकवर्ड क्लासेस। वो भी इसी में कहीं लिखा है, इस किताब में है। और सारे जजेस की ये लिस्ट पूरी की पूरी लगी है कि किस हाई कोर्ट में कौन कौन से ये जो क्या नाम है जिसको कहते हैं मिलाड़ लोग हैं, सारे मिलाड़ों के नाम है, जो आज ये लोग जजमेंट देने बैठे कि क्रीम हो गई है बड़ा शेड्यूल कास्ट में, क्रीम निकाल के बाहर कर दो। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई संघर्ष तो है, पॉलिटिकल बैटल एक तरफ, अब न्यायपालिका के खिलाफ होगा, और एजेंडा तैयार करिए कि क्या क्या एजेंडा होना चाहिए। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर टेक दिस चैलेंज आल्सो, एंड इन द हिस्ट्री वी हैव ऑलरेडी टेकन द चैलेंज। इट्स नॉट सो वेरी टफ टास्क फॉर अस टू एक्सेप्ट दिस। और जो मीना सर कहे उनके एक और भी मैं जोड़ दूं, लेट मी गो बैक टू द हिस्ट्री। 1869 there was a very massive protest in Bengal. 1869, remember that year. And 1871 there was a first census in India, and that powerful movement led by the untouchable community, 1869, and they came out with the document very categorically that India British government is going to conduct the census enumeration of the caste, and our enumeration should not be along with the Hindus. We are a separate identity, we are separate
separate race, we are separate community, we are separate religion. Our enumeration should not be along with the caste, the Hindus. और उसमें जो 71 का सेंसस हुआ, उसके बाद क्या किया उन्होंने लिखा उसमें, नमो शूद्रा वर्सेस चांडाल स्लैश चांडाल अगेन, एंड देयर इज लेटर इज अवेलेबल written by census commissioner that this was a mistake committed by our people and I tender apology before the community. Next time this mistake is going to be removed. तो सर उस पे भी सोचना पड़ेगा. एंड आई एम वेरी मच क्लियर कि हिंदू तो भाई तीन ही लोग हैं, चौथा कोई हिंदू उन्होंने, चाहे वो बुद्धिस्ट हो सकता है, आदिधर्मी हो सकता है, सतनामी हो सकता है, मतुआ हो सकता, कुछ भी हो सकता, बट दे आर नॉट द हिंदू. हिंदूज आर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर. ओनली 3 कम्युनिटीज आर हिंदू. आज नहीं तो कल बहस इसी पर होगी और तभी जो है एक साइंटिफिक जो है डिवीजन होगा, रिसोर्सेस का डिवीजन होगा, लेबर का डिवीजन होगा. भाई मैं तो ये भी कहता हूं कि सबको दे दो. जो मेरे कलीग अभी बोल रहे थे, क्या नाम है हमारे गंगा साहब भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये लोग मान लें तो मैं इस बात कहूं कि पूरा शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन छोड़ देगा. वी आर रेडी टू डिनाउंस ऑल दोस फैसिलिटीज. भाई अब तो क्रीमी लेयर में अगर तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना. वी आर इन द क्रीमी लेयर, तो सब सेलिब्रेट करना चाहिए. Let the reservation give to them those are discriminated. They are very emerge as a champion of those discriminated society. नाई कम्युनिटी का नाम आपने सुना होगा, नाई बिरादरी समाज, जिसकी आबादी एक विधानसभा या लोकसभा में 15,000 है. 15,000 में सर उसको रिप्रेजेंटेशन वो दे ही नहीं सकते, चाहे लोकसभा भी नहीं जीत सकता, विधानसभा, उसको कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा? The mechanism alternative is to somehow give him seat either in Rajya Sabha or Vidhan Parishad. There are certain many mechanism to accommodate them. Among the scheduled caste situation is the same. There are many communities. Their total number is, you can say, 20,000, 30,000, 50,000. I am aware with that. I am very much familiar about that. How you are going to give them justice? How you are going to? मेरे सोशल साइंस के जितने लोग यहाँ आ रहे हैं बहस करने के, बड़ा साइंटिफिक जजमेंट जैसा साइंस वही जानते हैं, बाकी तो कोई साइंस पढ़ा नहीं है. तो उन लोगों को ये कहना चाहिए, बताना चाहिए कि व्हाट आर द मैकेनिज्म यू हैव डेवलप्ड to support this category people, those you are supporting. कुछ तो बताइए हमको. और गवई साहब और जितने ये नौठ है हमारे, जो क्या बोले मिलाड लोग बैठे थे, मिलाड कहना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, वो मिलाडों को मुझे नहीं समझ में आ रहा कि स्टडी कौन सी किए थे. कोई मैं तो मांगूंगा, ये बता रहा हूं कि आरटीआई से फिर मांगूंगा सारे मिलाडों से कि जरा बताओ ना कि किस डॉक्यूमेंट के आधार पर तुम लोगों ने इस जजमेंट को दिया है, जरा बताओ. और उसमें कोई भी लाइन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है. कोई वेद सुना रहा है, कोई पुराण सुना रहा है, कोई गीता सुना रहा है, कोई महाभारत सुना रहा है कहानी. और सभी ने यह चीज जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश किया, जो स्टेट को दे रहे हैं ये लोग, यूनियन जो प्रेसिडेंट के राइट को जो लोग ये नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो बार बार जो मैं इस चीज को कहता हूं आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट सबकी जिम्मेदारी, जो बच्चे लोग जहां पर भी काम कर, हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, वो कुछ एक ही पेज का डॉक्यूमेंट्री जी एविडेंस इज गोइंग टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू यूनाइट द मासेस. और जो भी बने उसमें हम लोग कोशिश करें कि एससी, एसटी, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैं कहता हूं 25% और चाहिए. ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि 52% मंडल कमीशन ने कहा, 25% वो मिले, प्लस जो अभी मैं देख रहा था कितना है कि ये जो भी 2011 में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 15%, 2021 में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16.2%, यानी 10 साल में केवल 1% भी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी. दूसरा फिर इनका आ रहा है
2011 में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 7.5%, 2021 में जो 21 वाली इन्होंने किया है, 1 और 11 वाले में, उसमें क्या कह दिया, इनकी पॉपुलेशन 8.2% हो गई। अरे भाई, ये कौन सा मेजरमेंट है जहां पर दोनों की पॉपुलेशन में 0.7% है, दोनों के घर में एक एक ही बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या? किसी के यहां दो नहीं पैदा हुए? तो यहां भी फेक है, यहां भी फ्रॉड हो रहा है पॉपुलेशन। और जब मैं कहता हूं तो इस किताब में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन जनसंख्या घोटाला नहीं मिलेगा, उसकी रिकवरी आप नहीं कर सकते। एंड भारत सरकार के जो होम मिनिस्ट्री है, सेंसस डिपार्टमेंट है, वो आपके साथ यही कर रहा है, डकैती आपके नंबर पे कर रहा, आपकी संख्या पर कर रहा, उसको आपको छिपा रहा। एक तो ये हो। दूसरी चीजें सर, मीना सर चले गए, उनके काफी उनके उसमें अच्छा लगता, उनको आ जाएंगे। देश में कुल मिला जुला करके जो मेरे, अभी लोग कह देते हैं ना सूत्रों की माने तो मेरे सूत्र भी सारे सूत्र इन्हीं के पास होते हैं, हम लोगों के पास कोई सूत्र नहीं, हमारे सूत्र इनके हो जाते हैं। तो मीना सर की एक और उसमें आपके सप्लीमेंट में नोट दे रहा हूं सर, और आपको हो सकता है पसंद आए। अगर हम कहते हैं सारे लोग पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, सर मान लेता हूं एक्शन, हालांकि मानने लायक है नहीं, मैं गलत कर रहा कि हम सभी हिंदू हैं, मान के चलता हूं माजी, तो हिंदू हैं, तो भारत में 46 लाख मंदिर हैं, और 46 लाख में सर 1,76,00,000 पुजारी है। बाप रे, 1,76,00,000 इतना बड़ा रोजगार है। आया हम बैठ के रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ो रिसर्च मेथोडोलॉजी। कोई नौकरी ना मिलने वाली है, ठीक है। और उन मंदिरों में सर मैं देख रहा था, कैलकुलेट किया हूं, एक एक दिन की इनकम, और बड़ी इसमें कुछ काम तो किया, मेहनत तो किया ही, एक एक मंदिर और एक एक दिन की। सर उस मंदिर में जो हो रहा है करीब 71 लाख से ऊपर तो पुजारी बनेंगे शेड्यूल कास्ट वाले। अब 5 लाख से नीचे कहीं अमाउंट नहीं आ रहा है सर। 37-38 लाख पुजारी जो बन रहा है शेड्यूल ट्राइब का। हिंदू हो तो मांगो ना, उसमें दिनों तय कर लो तुम लोग, भाई जिस दिन कम पूजा करने वाले तो उस दिन शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को रख दो, मंगल तुम लोग ले लो। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूं कि जब आप बात करते हैं तो बड़े डॉक्यूमेंट के साथ, और जितने भी गांव हैं, कस्बे से लिए नगरों से लेकर के सारे के सारे, प्रति माह की कमाई कितने मिलियन जो है एक मंदिर से आती है, प्रति वर्ष कितने मिलियन मंदिर से आती है। जरा एक मैं तो कहता हूं कि सर पहली चीज हम लोग यही करेंगे, अगर अल्टरनेटिव पेपर बनाते तो मंदिरों में 37 लाख से ऊपर हो रहे हैं यार, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे पढ़ना भी नहीं है। ऐसी भाषा हमारे देवता पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो पुजारी जो सीधे भगवान से, एसटीडी से, आईएसडी से जुड़े होते हैं, कि जो पब्लिक नहीं समझती है, तो 2-4 वो भी पढ़ लीजिए आप लोग। मैं तो कहता हूं सारे एससी को, एसटी को भाषा जरूर पढ़नी चाहिए, और उसमें केवल 10वीं 8वीं पास हो जाइए, 10-5 लाख की नौकरी की व्यवस्था होगी। अल्टरनेटिव में ये हम लोग जरूर रखेंगे इस डॉक्यूमेंट को। और जो चीजें हो रही है, हाँ, 3 जो टोटल इनकी आ रही है जो मंदिरों में, 3 करोड़ से ज्यादा सर, 3,76,00,000 पुजारी हो। अब 3,76,00,000 नगर से लेकर के, गांव से लेकर के, कस्बे से लेकर के, दिल्ली में कितने होंगे, बंबई में कितने होंगे, कलकत्ता, सारे चीजें निकाली गई। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, दो आई एम नॉट अ हिंदू, आई डोंट बिलोंग टू दिस सेक्ट, बट आई एम ऑल्सो ग्रीडी टू बिकम अ पुजारी। बाप रे बाप, यहां हम लोग सर टीडीएस देते हम लोग महीना नहीं चल रहा, सारा टैक्स काट लेते, आधी तनख्वाह।
वहां कोई टैक्स नहीं। और तीसरी मैं आप लोगों के सामने जो बहुत अनदर इंपॉर्टेंट इशू विच आई एम गोइंग टू प्लेस बिफोर यू ऑल, जो अल्टरनेट में सर मोहन दारिया कमेटी की रिपोर्ट, everybody should read the report very carefully, and which has very categorically came out with a report that 175 million hectare surplus and wasteland is available in our country India. 175 million hectare, आधी तो उसमें मंदिरों ने घेर रखा, जो वक्फ बोर्ड पर चिल्ला रहे हैं आजकल, वक्फ बोर्ड पे ये कर दो वो कर दो। हम तो देवताओं से परेशान है भाई, कि सारी जमीन देवताओं को जो हमारे पास होनी चाहिए, इनके पास होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। एंड लैंड इज योर बैकबोन, लैंड इज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमी, लैंड इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, प्राइम मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और उसमें जो मोहन दारिया कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें इट इज कैटेगरिकली मेंशन, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रॉपर वे, एवरी लैंडलेस पर्सन, family, irrespective of their caste and creed, they will get 5 acre of cultivable land. 5 एकड़ जमीन की बात है। एक अल्टरनेटिव भी हो गया सब, मैं बताते जा रहा हूं। और सचमुच मैं आपको बहुत परेशान करूंगा, पेपर तो तैयार हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। 5 एकड़ जमीन जिस परिवार को मिल जाए आज की तारीख में, तो उसको सुबह उठ करके मजदूरी करने के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाएगा। इसी का फायदा इस लोग ले रहे हैं। जितने शेड्यूल कास्ट में जो लाइनलेसनेस पड़ी है, 74% लाइनलेसनेस पड़ी है, ये डेटा है, सब लोग बता रहे हैं। तो ये सारे डेटे तैयार करके और तमाम चीजों को डिस्कस करके मैं कह रहा हूं। दूसरी चीज और एक और जोड़ दूं कि आप लोग कहेंगे अभी जस्टिस नहीं हुआ, कि जब ईवी चिनैया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है, स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश स्टेट का, 5 जजेस बेंच उसको पूरे जजमेंट में, क्योंकि उससे पहले तमाम स्टेट्स में कैटेगराइजेशन, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे पंजाब हो, सब में हो गया। And they accepted this reality that society is a homogeneous society, homogeneous group, right? SC, ST is a homogeneous group. और इसके बाद जस्टिस हेगड़े, जस्टिस रमन्ना और जितने भी लोग रहे होंगे, they have given a verdict, and that is really a verdict based on Indian Constitution. आज की तरह ये लोग नहीं है, गीता और भगवत गीता और पुराण पे दे दिए। And this judgment protected the life of the scheduled caste and scheduled tribe. ये ईवी चिनैया, और ईवी चिनैया आप लोगों को बता दूं कि ईवी चिनैया के साथ मैंने काम भी किया है। अभी 5-6 साल पहले उनकी डेथ हुई है। ईवी चिनैया, ही वाज कन्वीनर ऑफ नेशनल दलित फोरम। और ईवी चिनैया के जजमेंट को, जो हम कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं जिसको कहते हैं कि द मोस्ट अनट्रस्टवर्दी पर्सन अगर कोई है देश का प्रधानमंत्री, जिसको यह नहीं पता है कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं को नहीं पता है, बायां क्या कर रहा है, दाहिने को क्या पता। और वो जो काम नहीं कर सके लोकसभा में, उसको ध्यान डाइवर्ट करने के सुप्रीम कोर्ट पे आ गए। तो मैं सभी लोगों को एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स को एक बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया है आप लोगों ने इस ग्रुप को, लेकिन तैयारी करिए कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। Until unless स्पेशल कोई उसमें नहीं ला करके, अगर ये अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये नहीं रोकते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जितने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समाज है, जो पिछड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिकली भी कमजोर है, उनको एटलीस्ट एक रखा जाए कि हर परिवार को एनुअली कम से कम आप 5 लाख रुपए दीजिए, तो कुछ करने के लिए ना, चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल ट्राइब। पहले इकोनॉमिक उनके अंदर वो करिए, स्ट्रेंथन करिए इकोनॉमिकली ना, कुछ तो करिए आप। मैं तो 5 ही कर रहा हूं, मैं तो बोलने वाला कुछ और भी ज्यादा। तो एक अल्टरनेटिव सर कोई पेपर कि 5 लाख उनको दीजिए, प्लस जो आप किए हुए पिछले 30 सालों से चला रहे 15% और 7.5% का स्टीरियोटाइप का, इसकी समीक्षा हो कि इनकी एक्चुअल पॉपुलेशन, व्हाट इज द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और उसके अब फिर आएगी वही बात कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
यही एक सोल्यूशन अंत में आएगा। और अभी एक आए थे अभी जेएनयू में सर, राजकुमार राउत साहब, जो आपके साथ हुई थे, हमारे साथ हुई, उन्होंने लोकसभा में एक स्टेटमेंट कुछ दिया कि मैं हिंदू नहीं हूं, काफी उस पर चर्चा हो। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप इस मूवमेंट को पूरे देश में लीड करिए, कम से कम पूरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आपका साथ देगा कि हु आर द हिंदूज, हु आर नॉट द हिंदूज। और जब कास्ट में सेंसर मीना सर हम लोग कह रहे हैं, तो देयर शुड बी कास्ट इन्यूमरेशन ऑफ द हिंदूज फर्स्ट। पहले उनकी गिनती हो जाए कि वो कितने लोग हैं जो ये क्या नाम है, भूल गया टर्म, ये जो मिलाड लोग हैं, ये मिलाड लोगों को पहले उनको कितने परसेंट है कि जो 600 कुछ लोग जज बनते हैं, और 600 जज अगर 18 से 23 के बीच में बनते हैं, जिसमें केवल और केवल जज कितने बने शेड्यूल कास्ट के 10 हो, 600 में 10, शेड्यूल ट्राइब के 7 है और 8 बने। उसके बाद बैकवर्ड क्लास के कुछ बना दिया, 36 37 कुछ ऐसे बनाया। क्या अवेलेबल नहीं है क्या? तो आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक वेरी सीरियसली वेयर द रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन you all have to prepare a comprehensive document reflecting the aspiration of every section of the society belong to SC, ST and OBC. You have to do justice. और जो टारगेट किया है ना, महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी, आंध्रा में माला कम्युनिटी, बिहार और यूपी में जो चमार और जाटव कम्युनिटी, और इस तरह के जो आप किए हैं, इतना तो हम समझ लेते हैं कि आप मिलाड लोगों, मिलाडों के खिलाफ जब तक हम नहीं बोलेंगे, ये डर गए कि जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा ना, तब तो हमको बोलना नहीं चाहिए। जेएनयू में मास्टर, ये हमारी धिक्कार है। हम खुल के कहते हैं इसमें हमको कोई चीज नहीं, हम पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि 14 टे डीन है सर, 14 दिन में 11 टे ब्राह्मण है। वेबसाइट पे डाउनलोड करी, कितना बढ़िया जस्टिस है यहाँ पर, वाह। हंसी नहीं आती, हंसी में भी रुलाई है। यही सेमिनार जो हो रहा है यहां पर आप लोग कर रहे हैं, इतना बढ़िया, हमारे SIS मुझको रिफ्यूज कर दिया है, उसका भी एक मैटर है, वो भी एक इशू आ गया है कि हाउ लॉन्ग यू कीप ऑन डिनाइंग the fundamental rights of the scheduled caste and scheduled tribe in this university. You have to protect this campus also. You are the future of tomorrow. और उसमें तो बात होगी, और आज नहीं तो कल उनको मानना पड़ेगा कि SIS में, और जितने सेमिनार आप लोग कर लीजिए, कम से कम टीचर की हैसियत हम लोग आपके सभी लोगों को कहते हैं कि हम लोग सहयोग भी करेंगे, और 21 में जो भी हो रहा है आप लोग कोर्स ऑफ एक्शन बनाइए। वी ऑल विल सपोर्ट यू, वी ऑल विल सर्व विद यू। थैंक यू सभी लोगों का, ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद।